Last class we covered about the numericals of NCERT and about quantization of charge, and in this we will take about Coulomb's law. So what do you mean by Coulomb's law? Basically Coulomb's law, it generally states that when there are two static charges, दो स्टेशनरी चार्जेस होंगे Q1 एंड Q2 and they are been separated by distance, some distance r. If there is two static charges that are been separated by distance r, so according to Coulomb's law, their force is directly proportional to the product of the charges, and this force is inversely proportional to the square of distance between the two charges. This is what Coulomb have stated. So this force F is proportional to Q1 Q2 upon r square. That to remove this proportionality constant we can place K. So F is equal to K Q1 Q2 upon r square, and this K is known as electrostatic force constant. Let us see. The force between two static charges is called as electrostatic force. दो static means दो, अगर कोई दो charges हैं जो रेस्ट पे हैं, ये दोनों charges रेस्ट पे हैं, इनका वेलोसिटी ज़ीरो है और ये भी रेस्ट पे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम जो इंट्रैक्शन लगेगा उससे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. जो उनके बीच में फोर्स लगेगा उससे हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. Force between two static charges is called as electrostatic force. Next is, it was Charles Coulomb in 1785 who experimentally determined electrostatic force. तो एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स कूलम, उन्होंने 1785 में एक्सपेरिमेंटली बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस. दो पॉइंट चार्जेस के बीच में उन्होंने फोर्स निकाला अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, और उन्होंने देखा द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस. जो भी फोर्स होंगी ये दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगी वो क्या होगी? प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस. ओके. Between the 2 point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. It is directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to the square of distance between them. तो ये था Coulomb's law. The force of interaction between 2 point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. If 2 point charges are here, it is mathematical representation of the Coulomb's law. 2 point charges Q1 Q2 separated by distance r. So we can write force in this way. That I already explained. K is known as electrostatic force constant and K depends upon nature of media. K जो होगा वो अपन कौन सा मीडियम ले रहे हैं, वैक्यूम ले रहे हैं कि कोई अनादर मीडियम ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा. K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट कहते हैं हम यहाँ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अगर हम 1 में रख देंगे, के की वैल्यू अगर हम 2 से 1 में रखेंगे तो हमें फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर. एंड दिस इक्वेशन शोज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. ये इक्वेशन जो है वो बताएगी मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. एंड डोंट कंफ्यूज दैट के विद अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ओके, आई टेल dielectric constant. Let us represent the dielectric constant with epsilon r. It is defined
as the ratio of permittivity of medium. It is defined as the ratio of permittivity of medium to the permittivity of vacuum. So how can we write dielectric constant? So it is been written as epsilon r is equal to epsilon upon epsilon naught. Here epsilon is permittivity of medium and epsilon naught is permittivity of vacuum. Okay, so and from this equation we can write that epsilon r is dimensionless बिकॉज इन दोनों की डायमेंशन सेम होगी, जो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी डिवाइड में है तो इसीलिए जो अपने पास एप्सिलॉन आर होगा वो कैसा होगा, डायमेंशन लेस होगा. कुछ यूनिट्स देख लेते हैं हम एक बार. सी हियर एप्सिलॉन नॉट वैल्यू इज़ 8.854 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2 एंड के which is electrostatic force constant is 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. हम इनकी यूनिट निकाल भी सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू क्या है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. If we want to find the unit of K, that is electrostatic force constant, we just write K is equal to F R square upon Q1 Q2. Taking the units, K is equal to force unit is Newton, R is the distance between the two charges, so R will be meter square, and charge unit is coulomb, so coulomb square. That is the unit of electrostatic force constant, Newton meter square per coulomb square. And how we get the unit of epsilon naught? We know that since from equation 2 K is inversely proportional to epsilon naught, so epsilon naught inversely proportional to K, because 1 upon 4 pi is the constant, so it has no unit. Only the unit of epsilon naught only the unit of K will consider. So epsilon naught is inversely proportional to 1 upon K. Here unit of K is Newton meter square per coulomb square, so epsilon naught unit will be Newton meter square per coulomb square inverse, which can be written as coulomb square upon Newton meter square. Okay, so from this we get the unit of coulomb square Newton inverse meter -2. Next is Coulomb's law in vector form. If we consider Coulomb's law in a vector form, let us consider 2 point charges. 2 point charge हम यहाँ पे ले रहे हैं, Q1 and Q2. See there, Q1 and Q2 एट रेस्ट. और ये दोनों चार्जेस कैसे होंगे, एट रेस्ट, तभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा. सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हम आर मान लेते हैं इन द वैक्यूम. अगर कोई नॉर्मल होता है बाय कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ हम जानते हैं एफ जो होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. इट इज़ इन मैग्नीट्यूड फॉर्म. दिस formula is the magnitude form of Coulomb's law. And now we have to find the vector form of Coulomb's law. So we consider two charges Q1 and Q2, that Q1 distance from origin we take R1 vector, and Q2 distance from origin we take R2 vector. This Q1 and Q2 exert force on each other. So यहाँ अगर हम देखें इनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा R12 वेक्टर. R12 वेक्टर विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 फोर्स लाइक दिस. ओके, आई एक्सप्लेन.
See, we consider two charges, 2 point charges we consider. Here it is q1 and here it is q2. ओके, यहाँ q1 है और यहाँ q2 है. ये ओरिजिन से q1 जो है वो r1 वेक्टर डिस्टेंस पे और इसका है r2 वेक्टर. तो अब ये जो q1 है वो कुछ फोर्स q2 पे एग्जर्ट करेगा. तो इस फोर्स को हम क्या लिखेंगे, F21. फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या होगा, फोर्स ऑन चार्ज 2, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1. ओके, F21 शोज फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1. अब क्योंकि ये जो चार्ज Q1 है ये Q2 पे फोर्स लगा रहा है और Q2 जो है इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, तो अब ये चार्ज अगर इस पे फोर्स लगाएगा, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये फिज़िकली एक दूसरे से टच नहीं होते, पर ये कुछ इमेजिनरी फोर्स एक्सर्ट करते हैं. लेकिन हम कंसिडर कर लेते हैं कि इस चार्ज ने मानो इसको धक्का दे दिया, तो ये चार्ज इसकी तरफ आएगा, इसको मारने इस पर फोर्स लगाएगा तो चार्ज यूँ मूव करेगा. तो जो इनका वेक्टर डिस्प्लेसमेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, R12 वेक्टर. ओके, R12 वेक्टर. अब मानो अब लेट करो कि ये Q2 जो है वो Q1 पे फोर्स लगा रहा है. Q2 जो है Q1 पे फोर्स लगा रहा है, तो वो फोर्स होगी इस डायरेक्शन में. क्योंकि अगर लाइक दिस, मान लो ये चार्ज Q2 है और ये चार्ज Q1 है. अब ये Q2 है और ये Q1 है. अब ये Q2 जो है वो Q1 पे फोर्स लगाएगा, तो इस पे फोर्स लगाने की वजह से ये जो है Q1 वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा. इसीलिए हम जो लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, F12, यानी कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. अब क्या हुआ, अब जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो किस डायरेक्शन में हुआ, इस डायरेक्शन में. तो इसको हम क्या कहेंगे, क्योंकि जो 2 है ये इस पे फोर्स लगाने आ रहा था ना, ये जो चार्ज है Q2 वो Q1 पे फोर्स लगाने आ रहा था, तो इस डायरेक्शन में आ रहा था. तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो R21 वेक्टर होगा. ओके, सो दैट इज़ द डायग्राम. नाउ लेट्स सी. R1 vector is position vector of charge Q1 from the origin O. R2 vector is position vector of charge Q2 from origin O. Therefore, the displacement vector from Q1 to Q2, Q1 से Q2 में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, यानी कि दिस इज R12 वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल. इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका फाइनल पोजीशन R2 पे जाके मिलेगा. ये फाइनल है, ये इनिशियल है, तो क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1. सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1, क्योंकि इस तरफ जब आएगा इस पर फोर्स लगाने, जब ये ऐसे आएगा, देखो ना इस डायग्राम में, इस पे फोर्स लगाने जब ये Q2 इस तरफ आएगा यानी R21 करेगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर. कोई भी किसी भी वेक्टर की लेट कंसीडर करते हैं कि R वेक्टर है. ओके, कोई भी अगर हमारे पास वेक्टर होता है, कोई भी हमारे पास वेक्टर होता है, अगर हम इस वेक्टर का डायरेक्शन लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, किसी भी वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है उसे हम लिखते हैं आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर. ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर. तो अगर हम इसका भी इस वेक्टर का भी अगर हम डायरेक्शन देखें तो R12 वेक्टर का डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, R12 कैप इज इक्वल टू R12 वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ R12 वेक्टर. इसको हम ला लेंगे इक्वेशन नंबर 4. सिमिलरली फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21, इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, R21 कैप इज इक्वल टू R21 वेक्टर माइनस मॉड्यूलस ऑफ R21. F21 वेक्टर क्या शो करेगा, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1. F21 को हम कैसे लिखेंगे, F21 वेक्टर को कैसे लिखेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का होल स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. और यहाँ पे क्या लिखते हैं, डायरेक्शन. तो हमने कैसे लिखा है, R12 कैप, इसको हमने लिखा है R12 कैप, क्योंकि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इस डायरेक्शन में हम ले रहे थे. सी, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 जो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आ रहा था R12. सो यहाँ पे R12 वेक्टर एंड R12 कैप. सिंस हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर का जो स्क्वायर होता है वो उसके मोड के स्क्वायर के इक्वली होता है,
और जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या हो, और डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर और अ यूनिट वेक्टर, इसको हम यूनिट वेक्टर भी कहते हैं, जो किसके इक्वल होता है, उस वेक्टर के अपॉन मोड ऑफ द वेक्टर। अगर हम इस इक्वेशन नंबर 7 को यहाँ से पुट करके r12 कैप की वैल्यू अगर हम 6 में रख दें तो क्या होगा, F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 के मोड का स्क्वायर। ये सिमिलरली ये इसको यहाँ रखा तो ये R12 के मोड का स्क्वायर इनटू इस वैल्यू को हमने इस आर कैप की जगह रखा तो R12 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R12। यहाँ से हमको इक्वेशन मिल जाएगी, सिंपली ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब R12 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखना इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 2 देखना, R12 वेक्टर जो होता है वो क्या होगा, R2 माइनस R1 मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल 2 माइनस 1। तो यहाँ पे क्या होगा, हम इस R12 को क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 R2 माइनस R1 का क्यूब और यहाँ पे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सिमिलरली हम F12 भी निकाल सकते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 हम निकालेंगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस हमारी यहाँ R12 थी वो क्या हो जाएगी, 2-1 हो जाएगी और यहाँ पे भी आ जाएगा 2-1। इसको फिर से हमने चेंज किया तो R21 को हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इज़ 1 एंड इनिशियल इज़ 2, सो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 8 एंड इक्वेशन नंबर 9, इक्वेशन 8 and 9 shows that forces have equal magnitude but opposite direction। ये दोनों फोर्सेस क्या बता रही हैं कि इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, बिकॉज देखो ये इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। एक R2 माइनस R1 है और एक R1 माइनस R2 है। नेक्स्ट इज केस 1, इन केस ऑफ लाइक चार्जेस। अगर हम दोनों कैसे लेंगे, लाइक चार्जेस लेंगे, यानी कि हम जो चार्ज लेंगे या तो हम दोनों कैसे लेंगे, पॉजिटिव चार्ज, या तो हम कैसे लेंगे, दोनों नेगेटिव चार्ज। यानी कि लाइक चार्जेस अगर हम कंसीडर करते हैं तो F21 वेक्टर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। लाइक चार्जेस हैं सो इनका अगर मल्टीप्लाई होगा तो भी हमको कैसा मिलेगा, पॉजिटिव, और नेगेटिव नेगेटिव दो लाइक चार्जेस है तो इनका मल्टीप्लाई भी जो होगा वो हमको कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। यानी कि किसी भी कंडीशन में ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा जब भी लाइक चार्जेस होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि वैसे भी मोड है, जो भी मॉड्यूलस में वैल्यू रहती है, ऐसे मोड में जो वैल्यू रहती है वो हमेशा कैसी रहती है, पॉजिटिव। तो ये वैल्यू तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है। और R12 वेक्टर हमारे पास, R12 वेक्टर क्या था हमारे पास, फाइनल माइनस इनिशियल, ओके। एंड सेकेंडली Q1 और Q2 तो हमने यहाँ दिखाई दिया है कि पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि ये जो पूरा हमारे पास वैल्यू आया है वो कैसा आया है, पॉजिटिव आया है। दिस शोज दैट द फोर्स F21 वेक्टर, ये फोर्स F21 वेक्टर एक्ट अलॉन्ग R12 वेक्टर। इट मीन्स दैट फोर्स एक्टिंग ऑन वन चार्ज टेंड्स टू मूव इट अवे फ्रॉम द अनदर चार्ज, दैट शोज लाइक चार्जेस रिपेल। जैसे कि हमने यहाँ दो चार्जेस लिए थे, ठीक है। अगर हमने माना ये लाइक चार्जेस है, लेट अस कंसीडर पॉजिटिव और पॉजिटिव। ये चार्ज जो है वो इस पे, एंड वी आर बीन टॉकिंग अबाउट F21 वेक्टर, ओके। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये 2 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो ये वाला, ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये जो है चार्ज वो इस पे कैसे फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, रिपेल करते हैं। इसका मतलब क्या है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी कि जो चार्ज होगा Q2 होगा वो क्या चला जाएगा, Q1 से दूर चला जाएगा, क्योंकि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, R12 वेक्टर के डायरेक्शन में लगेगी। केस 2 हम कल देखेंगे। केस 2 क्या है, फॉर अनलाइक चार्जेस। अगर हमारे पास कैसे अपोजिट चार्जेस हुए, Q1 Q2 क्या हो जाएगा, लेस देन 0। अगर हमारे पास मानो कि Q1 कैसा है, एक पॉजिटिव चार्ज है, और Q2 हमारे पास है एक नेगेटिव चार्ज, कैसे हो गए, अनलाइक चार्जेस। तो फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन होता है R क्यूब, और यहाँ पे क्या होता है हमारे पास R वेक्टर, ऐसा होगा। तो अगर ये ऐसा है, ये क्या है, Q1 पॉजिटिव
और Q2 क्या है, नेगेटिव। सो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो प्रोडक्ट होगा वो तुम्हें नेगेटिव मिलेगा, यानी अब जो तुम्हें फोर्स मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R क्यूब। F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का क्यूब, और यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है तो माइनस इसका है R12 वेक्टर। सिंस चार्ज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, सो नेगेटिव जो होगा वो सिर्फ किसकी वजह से होगा, डायरेक्शन की वजह से, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसीलिए जो नेगेटिव साइन होगा वो सिर्फ डायरेक्शन को शो करेगा, इसलिए हमने इसके अंदर लिखा है। दिस शोज़ दैट, इससे क्या पता चल रहा है कि फोर्स F21 वेक्टर एक्ट अलोंग माइनस R12 वेक्टर, यानी कि जो फोर्स है F21 वेक्टर वो माइनस R12 के अलोंग क्या करेगी, एक्ट करेगी, और माइनस R12 वेक्टर किसके इक्वल होता है, R21 वेक्टर। दिस मीन्स फोर्स एक्टिंग ऑन वन चार्ज मूव इट टूवर्ड्स द अनदर चार्ज लाइक दिस। If I have charge positive, here it is charge negative, okay, and we have been putting force F21 यानी कि force on 1 due to 2. This force here we have R12 vector. R12 vector is in this direction, no, R12 vector is in this direction, लेकिन because negative charge, negative R12 vector, the direction is now this, यानी minus R12 vector, and this is the same direction we have been written for R21. ओके तो अब क्या हो रहा है, क्योंकि लाइक चार्जेस क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो इस जो नेगेटिव चार्जेस पे जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ से मालूम चल गया कि जब भी कोई फोर्स में नेगेटिव साइन होगा दैट मीन्स अट्रैक्शन हो रहा है, किसी भी फोर्स में पॉजिटिव साइन आएगा दैट मीन्स चार्जेस का रिपल्शन हो रहा है। यहाँ से हमें क्या पता चल गया, हैंस लाइक चार्जेस रिपेल each other and unlike charges attract each other. That's all for today.